Thank God for the word about humility, that we really need to be refreshed and reminded. और प्रभु की स्तुति हो जो हमने नम्रता के बारे में वचन सुना। I was thinking of what Jesus said. In Matthew chapter 11, verse 29. मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय और 29 वचन, जहाँ यीशु ने कहा, It says, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you shall find rest for your souls." मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। So my example is not any human being, but Jesus Christ. तो मेरा जो उदाहरण है वो यीशु मसीह है और कोई मनुष्य नहीं। So, so Jesus humbled himself to become. He was God. He became a man. Then he humbled himself, became a servant, and then he humbled himself further to become to die as a criminal. हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो दुनिया में एक मनुष्य बन के आए, फिर उसके बाद वो एक दास बन गए, और दास बनने के बाद वो एक अपराधी के रूप में क्रूस पर चढ़ाए गए। So my desire is that I also humble myself more and more and become, as the Word of God says, a nothing or a nobody. तो मेरा भी यही लक्ष्य है कि मैं भी यीशु मसीह के समान बन जाऊं और अपने आप को शून्य समझूं। I'm challenged by this verse in Galatians 6. Galatians 6, it says, verse 3, "If anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself." ये जो गलातियों का 6वां अध्याय और उसका 3रा वचन मुझे एक चुनौती देती है। यहाँ लिखा गया है, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। So I tend to think that I am something. So I always need to come to the place of being nothing. मैं हमेशा अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं कुछ हूँ, तो इसीलिए मुझे हमेशा उस स्तर पर आ जाना चाहिए जहाँ मैं मान लूँ कि मैं शून्य हूँ। The Bible says that we can be wise in our own estimation. वचन ऐसे कहता है कि हम खुद के बारे में सोचते हैं कि हम बुद्धिमान हैं। See, naturally, the human nature is to think that I am better than what I am. हमारी जो प्रवृत्ति है वो ऐसा है कि हम सोचते हैं हम जो हैं उससे हम अपने आप के बारे में बढ़कर सोचते हैं। So it says in Romans chapter 12 verse 16, Romans 12:16, रोमियो 12 और उसका 16वां वचन, "Be of the same mind towards one another. Do not be haughty in mind, but associate with the lowly. Do not be wise in your own estimation." रोमियो 12 का 16, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। So this is the thing which is always I have to be aware that I can be wise in my own estimation. तो मुझे ऐसे चौकसी रखनी चाहिए अपने बारे में कि क्योंकि मैं हमेशा अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर सोचता हूँ। And so I must humble myself, and because I can think that I have got more knowledge, I've got more revelation. I can even think that I am more humble than others. मैं सोच सकता हूँ कि मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है, या परमेश्वर ने मुझे ज़्यादा प्रकाश दिया है बातों के ऊपर, और मैं ये भी सोच सकता हूँ कि मैं दूसरों से अधिक नम्र हूँ।
So the deception is so subtle that we can think that we are good when actually it is not so. हम ऐसे धोखे में रहते हैं कि हम सोचते हैं कि हम दूसरों से बढ़कर हैं या दूसरों से अच्छे हैं. I was encouraged by what Sandeep Punan wrote in his article, that there are no mirrors in heaven. मुझे उस जो वचन से जो ब्रदर संदीप पुन्नन ने बांटा, उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, जहां भाई कहते हैं कि स्वर्ग में कोई दर्पण नहीं होगा. So when we look at the mirror, we see ourselves. जब हम दर्पण में देखते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं. Okay? We admire ourselves when we have dressed up nicely and जब हमने अच्छी तरह अपने आप को सच धज कर हम उस दर्पण के सामने आते हैं, तो हम अपने आप को अच्छा समझते हैं, सुंदर समझते हैं. Then we also, as we are walking with the Lord and God is doing a work in our life, then we try to look back and say, I've become a little bit more kinder, I've become more gentle, generous, I've become more humble. We try to see ourselves in some sort of spiritual mirror. तो हम भी ऐसे ही अपने आप को एक आत्मिक दर्पण में देखते हैं और सोचते हैं पहले से मैं और अच्छी हो गई हूँ, या नम्रता या दूसरों के साथ दया दिखाने में, इन सब बातों में हम अपने आप को और बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं. In one way, we can, in the right way, we can take it as an encouragement that God is doing a change in our life. ये हम एक प्रोत्साहन के रूप में देख सकते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं. But if we take it that I'm really progressing in the wrong way, then instead of real humility, some pride can come. लेकिन अगर हम एक गलत रीति से उसे लेंगे तो हमारे अंदर जो है घमंड आ जाता है. Our mirror is only Jesus Christ. हमारा जो दर्पण है वो सिर्फ यीशु मसीह है. We, whether here or in heaven, we'll be only looking at His face. अगर इस दुनिया में हो या स्वर्ग में हो, हम सिर्फ यीशु मसीह के ओर देखें. I was challenged by the life of Jesus. मुझे चुनौती मिली जब मैंने यीशु मसीह के जीवन के बारे में ये देखा, and to know that how far away I am from His nature. और मैंने देखा कि मेरा जो चरित्र है वो यीशु मसीह से बहुत दूर है. That is in Matthew chapter 9 verse 10. मत्ती 9 का 10वां वचन. And it happened that as he was reclining at the table in the house, behold, many tax gatherers and sinners came and were dining with Jesus and his disciples. जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे. So Jesus was sitting at the table and having food, and along with him were tax collectors, means people who were, who were actually, some of them were cheating the public. हम देखते हैं कि यहाँ यीशु मसीह जो है भोजन करने के लिए बैठे थे, तो उनके साथ ऐसे लोग बैठे थे जो टैक्स लेते थे लोगों से. इसका ये मतलब हुआ कि वो लोगों को से जितना लेना नहीं था उतना वो बड़ा चढ़ा कर लेते थे उनसे. And then sinners is actually non-religious Jews. और पापी जन, इसका मतलब जो धर्मी नहीं थे. That means they were not at all following the Jewish laws or traditions, but they were, you can say, worldly people. वो ऐसे सांसारिक लोग थे जो व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते थे. So, can we think of the same? Can I think of myself with but the thing is that we must realize that these people came to Jesus because they were attracted to him. लेकिन हमें ये समझ लेना चाहिए कि लोग उनके पास इसीलिए आए, यीशु के पास इसीलिए आए क्योंकि
वो उनके आकर्षित हुए थे and their life was changed. और उनका जो जीवन था वो बदलने लगा था But they could be attracted to Jesus और वो आकर्षित हुए because in his eyes there was no pride, there was no despising them. क्योंकि वो यीशु मसीह के मन में बिल्कुल भी घमंड नहीं थी और वो उनको तुच्छ नहीं जानते थे. I am challenged to want to be like that. तो मेरी भी ऐसी इच्छा है कि मैं ऐसे ही बन जाऊं. Amen. So when we hear about humility, we can always feel that we are far from it and can go depressed. तो जब हम दीनता के विषय में सुनते हैं तो हम सोच सकते हैं कि हम बहुत दूर हैं और हम इस बारे में निराशा में भी जा सकते हैं. But there is tremendous hope for each one of us because it is not that we are doing it, it is Christ doing it in us. मगर हम सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा आशा है इस विषय में क्योंकि यह हम खुद नहीं करते हैं, ये यीशु मसीह हमारे लिए करते हैं. Jesus said in Matthew 11 that take my yoke upon you and learn from me. यीशु मसीह ने मत्ती के 11वें अध्याय में ऐसा बोला कि तुम मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो. We can hear about humility, we can read about humility, but learning humility is only from Jesus. तो हम दीनता के विषय में सुन सकते हैं और उसके बारे में बोल भी सकते हैं, मगर जो सच्ची जो दीनता है वह हम अगर सीखना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह से सीखना होगा. There's a verse in Romans 12:3 which says that for by the grace, Romans 12:3 says, for by the grace given me I have, Romans 12:3, 1 minute, yeah. Do not think yourself more highly than you ought to, but rather think yourself with a sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. तो रोमियो के अध्याय 12वें अध्याय के 3रे वचन में ऐसा लिखा है कि जो भी तुम्हें समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे. Brother, you are able to hear me, no? Hello? Yeah, is it? I could not. Your sound was breaking, but was it problem here? Your place? I don't know. Can you hear me? Yeah, I can hear you, brother. It's Hello? clear. Yeah, brother, I can hear you. What about others? Yeah. Okay. Okay. Yes, everybody can hear. I think. Yeah, okay. I will continue. So it says that have a sober estimate. People who are drunk are not sober. Bible says people who are drunk are not sober. तो बाइबल ऐसा कहती है कि अपने आप को एक सही नाप से तोलें, क्योंकि जो लोग नशे में रहते हैं वह सौम्य नहीं रहते. The opposite of that is people who are filled with the Holy Spirit are really, that's the real soberness comes when you are filled with the Holy Spirit. तो उसका विपरीत ऐसा है कि जो लोग भी पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं वे सौम्य होते हैं. And also it says in accordance with the faith God has distributed to each one of us. God has given different measure of faith to each one of us. So none of us are equal. तो ये ऐसा भी लिखा है बाइबल में कि हमारे विश्वास के अनुसार हमारे साथ होगा, क्योंकि हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग रीति से विश्वास दिया है, तो हम सबका वो समान नहीं है. So with whatever God has given, be content and having an estimate of what God has given us. Be knowing exactly what you have is the humility. तो परमेश्वर ने जो भी हमें दिया है उससे हमें संतुष्ट रहना है और उसके अनुसार. And brother, can you repeat the second part? So understanding what we are, what God has given us, and be content with that is what humility is.
तो इस बात को समझ जाना कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है और उसके अनुसार उसमें संतुष्ट रहना ही एक सच्ची दीनता है. Our flesh is always in conflict with the Holy Spirit of God. तो हमारा जो देह है वह हमेशा परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है उसके साथ उसके साथ प्रतिस्पर्धा में रहता है. So our flesh wants to exalt ourselves, but Holy Spirit wants us to give us a very sober estimate of ourselves. तो जो हमारी देह है वह हमेशा अपने आप को ऊंचा उठाना चाहती है, मगर जो पवित्र आत्मा है वह हमेशा हमें सौम्य रहने के लिए प्रेरणा देता है. Paul says in 2 Corinthians 12:10, that is why 2 Corinthians 12:10, that is why for Christ's sake I delight in weakness and in insult and in hardship, in persecution, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. 2 Corinthians 10:13 ना ब्रदर? 12:10. तो बाइबल ऐसा कहती है दूसरे कोरिन्थियोस के 12वें अध्याय के 10वें वचन में कि इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं. So humility is the nature of God. तो जो दीनता है वह परमेश्वर का स्वभाव है. So when you are weak, when you are broken, that is the time when we are really strong. तो जब आप निर्बल हैं और टूटे हुए हैं वह ऐसे समय है जब आप वास्तविकता में मजबूत हैं. This is something which the world cannot understand or our flesh cannot understand. और यह एक ऐसी बात है जो ये दुनिया और हमारा जो देह है वह समझ नहीं सकता. But this is a hidden mystery in God's word. और यह एक ऐसी चीज है जो रहस्य है जो परमेश्वर के वचन में छुपा हुआ है. Jesus said, "Blessed are the meek; they shall inherit earth." यीशु मसीह ने कहा धन्य है जो दीन है, क्योंकि वे इस संसार के अधिकारी होंगे. Blessed are the meek, therefore they will inherit earth. धन्य है वे लोग जो दीन हैं, क्योंकि वे इस संसार के अधिकारी होंगे. So I submit myself to this word. अपने आप को इस वचन के हाथों में सौंप दूं. Amen. I'd like to take the opportunity to share something what I've heard today. तो मैं इस बात का अवसर लेना चाहता हूं, जो भी मैंने आज सुना उसके बारे में मैं बांटना चाहूंगा. Listening about the true marks of spirituality. और जब मैं सुन रहा था कि जो सच्ची जो दीनता है उसके जो क्या चिन्ह है उसके बारे में. Our example is Jesus Christ, how he lived humbly. तो हमारा उदाहरण है यीशु मसीह की उन्होंने किस प्रकार दीनता से जीवन जिया. He only obeyed his father, whatever father told him he did. और उसने अपने पिता की बात मानी, जो भी पिता ने कहा उन्होंने किया. We read in somewhere in Old Testament, I think it's book of Micah, that this is what God wants you to walk humbly with God. Micah chapter 6. तो ये बात हम पुराने नियम में पढ़ते हैं मीका के 6वें अध्याय में कि यही बात परमेश्वर चाहता है कि हम लोग दीनता से चलें. Sometimes we have the wrong understanding of humility. और कभी-कभी हमारे मन में एक गलत धारणा होती है दीनता के विषय में. We only see the one side of humility of Jesus, like Jesus washing disciples' feet or carrying up children and loving them and talking gently to sinners. तो हम लोग एक ही पहलू देखते हैं यीशु मसीह के जीवन का कि जिसमें वह अपने चेलों के पैर को धोते हैं और बच्चों को भी उठा लेते हैं अपने हाथ में और वह पापियों के साथ नम्रता से बात करते हैं. The other side of Jesus is his anger against those who do the wrong, that we don't see. और दूसरा जो पहलू है यीशु मसीह का वह उनका गुस्सा है जो हम नहीं देखते. We read in the Gospels that he himself made a whip, leave alone a stick or something. He made such a terrible thing that can hurt people when he saw people making money in the name of religion in the church and whipped them. I can't imagine myself doing that in the church.
तो हम नए नियम में देखते हैं कि यीशु मसीह ने खुद एक छड़ी बनाई और एक मजबूत छड़ी बनाई और उन्होंने उस छड़ी से पैसे जो लोग बना रहे थे कलीसिया में उनको पिटाई की, और मैं खुद भी ये बात कल्पना नहीं कर सकता कि मैं कभी क्या ऐसा कर सकता हूँ. I was thinking like he spoke the Sermon on the Mount, love your enemies, and said nice things, how to behave yourself. And here he was chasing doing the opposite of what he preached. तो मैं सोच रहा था कि कैसे जो पहाड़ी उपदेश है उसमें यीशु मसीह ने बताया था कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, मगर यहाँ पे जो वो कर रहे थे वह उस बात से विपरीत था. And I was thinking that as he was going to do that, he would have conversed with his father. और मैं ऐसे सोच रहा था कि जब ये बात यीशु मसीह कर रहा था तो उसने अपने पिता के साथ बात भी की होगी. Father, if I do this chasing with the whip, will not I will negate what I have preached, or will not my reputation for being a good teacher of the law be void? तो शायद उन्होंने अपने पिता से ऐसा भी बोला होगा कि अगर मैं ऐसे छड़ी से मारने जाऊंगा तो जो भी मैंने प्रचार किया है क्या मैं उससे अलग हो जाऊंगा, और क्या मेरा जो दूसरों की छवि है मेरी छवि दूसरों के प्रति वह अलग हो जाएगी. I think he said, forget it, Father, I'll just obey you. Whatever you want me to do, I'll do. I care less for my own reputation. तो और उन्होंने शायद ऐसा बोला होगा कि जाने दीजिए पिता, जो भी आप मुझसे करवाना चाहते हैं वो मैं काम करूंगा, और मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा कि मेरा जो छवि है दूसरों के सामने वह कैसी होती है. That's why I say humility is not about just acting humble, showing yourself you're nothing, nobody, having a low esteem about yourself. It's just obeying the Father. In all situations, whatever he tells you to do, you do it. Just like Jesus. तो मैं यहाँ पर ऐसा आपको बताना चाहता हूँ कि जो दीनता है वह सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम अपने बारे में खुद के विषय में छोटी भावना रखें, मगर वो ऐसा है कि जो भी पिता हमसे कहना चाहता है उनकी आज्ञा का पालन करें. So I had an opportunity to also be a little strict with somebody in the church, which I was responsible for. तो मुझे भी ऐसा अवसर मिला था कि मैं किसी के साथ कलीसिया में थोड़ा कठिनाई से पेश आऊं जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी. I didn't act humble or say nothing. I had to correct somebody. I corrected and left it to God. और मैंने सिर्फ नम्रता दिखाई नहीं, लेकिन मुझे जब उनको ताड़ना देना पड़ा तो मैंने उनको ताड़ना भी दिया और फिर परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया. And when I wanted to apologize, I apologized to that person, to whomever I have wronged unknowingly. That also I have done. और ऐसा भी हुआ है कि अगर मुझे अवसर मिला है कि मैं उस व्यक्ति के पास जाके जिसके साथ मैंने कुछ गलत किया है माफी मांगू, तो मैंने वह भी काम किया है. Thank you. धन्यवाद. मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए. परमेश्वर जो हमसे बातें किया, मुझसे बातें किया. I thank God for what we've heard today and for all the things that God has spoken to us today. मुझे मेरे खुद के जीवन में मुझे नीड है, जरूरत है कि मैं दीन बनूं, नम्र बनूं. It is the need in my own life to become humble. और जैसे कि हमने सुना कि हम यीशु मसीह हमारे लिए एग्जाम्पल है, हम उससे सीख सकते हैं. So just as we heard that Jesus is our example to follow in becoming humble. हम कितना सारा बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए एग्जाम्पल है. We see in the Bible the example that Jesus has set for us. हम देखते हैं कि फिलिपियंस चैप्टर 2 में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने आप को एम्प्टी किया, अपने आप को खाली किया. In Philippians chapter 2, we read about Jesus emptying himself. तो वो भी मैं जब पढ़ा तो मुझे मेरा खुद के जीवन के लिए मैं देखा कि काफी सारा चीज मुझे भी अपने आप को खाली करना है. मतलब यीशु मसीह ने क्या खाली किया रहेगा. यीशु मसीह ने वो इतना सामर्थ्य था, वो 1 मिनट में स्वर्गदूत को बुलाकर सबको खत्म कर सकता या सबको स्वर्ग लेके जा सकता, कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो अपने आप को खाली कर दिया.
So as I look through this verse, I realize the things that I need to empty in my own self, and how Jesus emptied himself of so many powers. He could have asked the angels to come down and fight for him, but he didn't do any of those things. तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बट कभी कभी हम कुछ नहीं रहते हुए भी हम सोचते हैं कि मैं कुछ हूँ. So I don't consider myself anything. I am nothing. But sometimes we tend to think a lot about ourselves. तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको मुझे लाइट दे रहे, मुझे सिखा रहे, बता रहे. So I want to thank God that God spoke through this verse and these words today and gave me light on myself. लास्ट वीक में मैं एक वचन पढ़ा जो रोमी में लिखा है, जो मैं अपने ब्रदर्स मीटिंग में शेयरिंग किया. मुझे बहुत ही एनकरेज लगा और मुझे परमेश्वर के वो वचन क्लोज लेके आया. So last week I shared a verse in the brothers meeting from Romans which really touched me. 8:17 में लिखा है कि उसमें लिखा है कि यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस है तो मसीह के संग वारिस भी है. And इंग्लिश में पढ़ो नहीं है तू? हाँ. And the verse is from Romans chapter 8 verse 17. And if children, heirs and also heirs of God and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with him, so that we may also be glorified with him. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको उसका संतान, मतलब उसके बच्चे हैं. अगर हमने रिपेंट किया, पश्चाताप किया, मन फिराया, यीशु पर विश्वास किया, हम उसके बच्चे हैं. और लिखा आगे कि सिर्फ संतान ही नहीं बल्कि वारिस है. वारिस का मतलब जो कुछ भी पिता का है वो यीशु मसीह का है, और जो यीशु मसीह का है मतलब हम भी उसके बच्चे हैं, वो मेरा है. So once we have repented and come to God, then we are his children, and not just his children, but we are heirs. The meaning of heirs is whatever belongs to the father belongs to the children, and so whatever belongs to God belongs to us. तो वो मुझे बहुत छू गया, मुझे बहुत टच किया. मेरा परमेश्वर का, हम कभी कभी अपने आप को हम सही नहीं है, कंडेम में रहते हैं, कभी कभी सोचते हैं प्रभु मैं ऐसा नहीं है. बट मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो परमेश्वर जो यीशु मसीह को दिया वो आपको भी देना चाहता है. या मुझे, मैं इस तरह सोचा, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया वो मुझे देना चाहता सब कुछ. और रोमियो 2:11 में ऐसे लिखा है, देयर इज नो पार्शियलिटी विद गॉड, मतलब वो पक्षपात नहीं करता. So I was very touched by this verse, and I just thought that I don't need to be in any sort of a condemnation, because I am the heir of God, and whatever God gave to Jesus, he will give to me as well. And secondly, there's this verse in Romans chapter 2 verse 11 which says that there is no partiality with God. So what God has given to Jesus, he's also given to me as an heir. जिस इसके बारे में सोचो. Praise God. So let us think about these things. Praise God. ब्रदर सैम जो कुछ शेयरिंग किया उसमें से एक दो चीजों से मैं थोड़ा दौड़ाना चाहता हूँ उसको. So what brother Sam shared today, I just want to reiterate one or two things from it. एक चीज है कि जब मैं करेक्शन के लिए खड़ा हूँ, अगर कोई भी एल्डर ब्रदर मुझे करेक्शन कर रहे हैं और वो करेक्शन सिर्फ 80% है, अगर मैं वो 80% ले लिया हूँ, लेकिन अगर घर में अगर कोई भी मेरा वाइफ हो या मेरा कोई आत्मिक भाई हो 20% मुझे करेक्शन करना चाहता है लेकिन वो लेना नहीं चाहता हूँ, तो फिर भी मैं दीन नहीं. So if I am suppose if some elders have corrected me in the church and I'm ready to take that correction 80%, and there's someone in my family, maybe my wife or my brother, sister, someone in my family who's trying to correct me, but I'm not ready to take that correction, then I'm not humble. जो करेक्शन जो घर में हो रहे हैं वो खाली छोटा चीज है, 20% है, लेकिन मैं वो लेने के लिए तैयार नहीं हूँ.
लेकिन नहीं, 80% जो कलिसिया के एल्डर के द्वारा जो करेक्शन वो लेने के लिए तैयार है, उसके लिए मैं एक हम्बल दीनता में नहीं। So all this is correction that I receive from home, maybe on or from my family, maybe on little things, and may constitute a really small part of the correction that I receive. And the correction that I receive from the elders may be something significant. But even if I'm not willing to take that small correction from my family members, then I'm not humble. और एक चीज में ब्रदर सैम ने जो बॉटल्स जो समुद्र के किनारे पे जो एग्जांपल देखा है उसके साथ बातचीत करना चाहता हूँ। So I also want to share on the example that Brother Sam gave about the bottle. और इसने एक फुल बोतल और एक आधा भरा हुआ बोतल में दिखाया। So as he spoke about the full bottle and the half filled bottle. और आत्मिक जीवन में मैं हमेशा इस तरह से सोचता हूँ कि मैं एक आधा भरा हुआ बोतल की तरह हूँ। So in terms of my spiritual life, I think that I am like the half filled bottle. और मैं कभी भी किसी के साथ तुलना नहीं कर सकता, जैसा कि सिंगी लेने वाला वो फरीसी के उधर वो फरीसी सिंगी लेने वाले के साथ तुलना कर रहा था। So brother, please एक और बार रिपीट करेंगे? मैं इस आधी बाटली की तरह हूँ हमेशा आत्मिक जीवन में। मैं उस व्यक्ति के जैसा तुलना नहीं करना चाहता हूँ जो फरीसी सिंगी लेने वाले के साथ किया था। So I am like that. I am like a half-filled bottle. The example which Brother Sam gave, and I don't want to make a comparison like how the Pharisees compared themselves with the tax collector. हम देखते हैं कि इस स्टोरी में देखते हैं कि परमेश्वर यीशु का प्रार्थना ग्रहण किया और यीशु का प्रार्थना ग्रहण नहीं किया। So we read in the Gospels that God accepted the prayer of the tax collector, but not of the Pharisee. Correct, brother? Yes. इसका कारण ये है कि वो और किसी और के साथ वो तुलना करने के लिए सोच रहा था। And the reason for this is because the Pharisees had this spirit of comparison, and they were they were comparing themselves with others. ये एक ऐसा चीज है कि मैं अभी तक पूरी तरह से दीनता में नहीं हूँ। So in that way, I consider myself that I'm not totally humble. Philippians 2 chapter 5 to 9 अगर पढ़ेंगे वहाँ पर ब्रदर मैथ्यू शेयर किया था कि वो परमेश्वर जो है वो मनुष्य बना और मनुष्य होके वो दास बना, दास होके हमारे लिए क्रूस पर एक क्रिमिनल के रूप में गया, जिसके कारण पिता ने उसके सर्व और अच्छा ऊंचे स्थान पर सिंहासन पर उनको बिठाया गया। फिलिपियंस का कौन सा वर्स का ब्रदर? Chapter 2 verse 5 to 9 something. Okay. So just translation. So we read in Philippians chapter 2 verse 5 onwards that have this attitude in yourselves which was in Christ Jesus, who although he existed in the form of God did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a bond servant and being made in the likeness of men. Yes, yes. यहाँ पर प्रभु पिता परमेश्वर अपनी दीनता दिखाया, एक मानव रूप धारण किया, एक दास की रूप धारण किया और आखिरी में आप और मेरे पापों के लिए क्रिमिनल की रूप धारण करके क्रूस पर चढ़ा। So from this verse we come to know that God emptied himself and he became like man, and he came and died for our sins on earth, and this was the extent to which he made himself humble. इसी के कारण पिता ने उसको सर्व ऊंचे स्थान पर बिठाया गया। And this is the reason why the Heavenly Father exalted him and glorified him to the highest place. बहनों, हम सब इस दीनता प्रभु यीशु में 100% सीख सकते हैं। So, brothers and sisters, let us all be as humble as Jesus Christ was. और वो हमारे लिए एक मार्गदर्शन है, हमारे लिए एक उदाहरण है। इसलिए कहा कि मैं मन में दीन हूँ, मुझसे सीखो। And he is the one who is our example, and he is the one who leads our path. उसने कहा कि मुझसे सीखो, मैं मन में दीन हूँ। Brother, please repeat करेंगे?
मुझसे सीखो, मैं मन में दीन हूँ। लर्न फ्रॉम मी, आई एम। नहीं समझ में आया ब्रदर, सॉरी। Okay. Learn from me, for meek and humble in heart. Yes, yes, yes. So yeah. Yeah, praise God. Thank you. आई जस्ट वांट टू टेक 2 मिनट, 2 मिनट बोलूंगा। ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, सिर्फ जो मेरे मन में है आई वांट टू शेयर। बाइबल कहता है हम्बल योरसेल्फ इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमें मनुष्य के सम्मुख नम्रता दिखा के कोई मतलब नहीं है। जैसे हम किसी के सामने 1 घंटा 2 घंटा रहते हैं, उनके सामने अच्छा रहे, अच्छी बातें करे, ये हम्बलनेस नहीं है। बाइबल कहता है हम्बल योरसेल्फ इन द साइट ऑफ लॉर्ड। परमेश्वर के नजर में हमें नम्र रहना है। प्रभु हमें कब देखता है? 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 24 घंटे नजर हमारे ऊपर रखता है। तो 24 घंटे का जो नम्रता हमारे अंदर रहना है, तो ये हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, या हम सुन के ऐसा नहीं कह सकते कि मैं ये इसको हमारे अंदर डेवलप करूंगा। मैं ये एक स्किल नहीं है जो मैं अपने अंदर डेवलप कर सकता हूँ। यीशु ने कहा लर्न फ्रॉम मी टू बिकम हम्बल। तो यीशु ने कभी ऐसा नहीं कहा लर्न फ्रॉम मी कि मैंने कैसे चमत्कार करके 5000 लोगों को खाना खिलाया। उसने ऐसा नहीं कहा कि लर्न फ्रॉम मी कैसे मैंने मुर्दों को जिलाया। ऐसे मिनिस्ट्री के बारे में उसने कभी नहीं कहा ये मेरे से सीखो। बट एक चीज उसने कहा मुझसे सीखो, जो हम पढ़ सकते हैं बाइबल में, वो है क्या? मुझसे नम्रता सीखो। एंड वन थिंग कि हम उससे सीख कैसे सकेंगे प्रभु के साथ? बाइबल कहता है जो प्रभु के साथ अपना समय बिताता है, प्रभु के साथ रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। तो ऑटोमेटिकली जो प्रभु का नेचर है इट स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन आवर लाइफ। ऐसे नहीं कि हम बता रहे हमारे अंदर नम्रता है लोगों के सामने, नहीं, ऑटोमेटिकली वो हमारे एक स्वभाव में आता है। ये मैं विश्वास करता हूँ कि जितना हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं, वो हमारे अंदर लाइट दिखाता है कि देख ये चीज के अंदर तेरा घमंड है, ये देख किस तरह से तू बातें करता है। तो ये सिर्फ प्रभु ही सिखा सकता है। नो मैन कैन टीच अस कि तेरा ऐसा है वैसा है। हाँ, और बेस्ट एग्जांपल है हमारे घर में हम कैसे रहते हैं। बाहर हम कितने भी हम्बल रह सकते हैं, पर घर में जो हमें रिपोर्ट देते हैं घर वाले कि तू ऐसे बात करता है, तू ऐसे रहता है, दैट इज अ ट्रू रिपोर्ट विच वी गेट फ्रॉम देम। और प्रभु ही हमको सहायता कर सकता है इस सारी चीजों के ऊपर जय पाने के लिए। और जैसे वचन में भी लिखा है जो नम्र रहते हैं उसको प्रभु का अनुग्रह मिलता है, और वो हर चीज में उसको जयवंत प्राप्त होता है। तो बहुत अच्छा लगा आज परमेश्वर का हमने जो वचन सुना, नम्रता जो हमने सीखा, एक फाउंडेशन है क्रिश्चियन लाइफ का। और परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे जब हम दीनता से रहते हैं, उचित समय पर वो हमें उठाता है। तो हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं।